Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Sumati Shandile, Inspector General, Principal Chief Security Commissioner in charge of Railway Protection Special Force. Today I am here in front of all of you to share my views, my experiences, my expertise, and my opinion on the topic of expectation of Indian Railways from RPF. Because the audience is varied from across the country, I will keep switching over from English to Hindi, Hindi to English, so that everybody in the audience is able to get my message, understand what I want to say, and appreciate it. दोस्तों, जहाँ तक हमारे एक्टिविटी का सवाल है, हमारी जीवनचर्या का, हमारे कार्यकलाप का सवाल है, all of us have some objectives, some mission in mind. These objectives are of different hierarchical order. There are some personal goals, personal objectives, personal missions. Missions is something that you want to achieve in the longer run. Objective जो है वो आपका डे टू डे एक्टिविटी डिसाइड करता है, gives you direction. उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिशन होता है. हम रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य हैं. So our organization, Railway Protection Force, in itself has a set of objectives, a mission. Similarly, being part of RPF, we are also part of the macrocosm of Indian Railways. हम भारतीय रेल के भी सदस्य हैं, भारतीय रेल के रेल सैनिक हैं. So Indian Railways also have a set of objectives, a mission areas, which gives direction to the functioning of Indian Railways as an organization. And then there are national objectives, national duties. Duties which are awarded to us as a citizen in uniform, living in India, being a citizen of India. हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम. That means the national interest is paramount. राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य जो है, राष्ट्र के प्रति हमारी जो ड्यूटी है, उसको सबसे ऊपरी हायरार्की की ड्यूटी मानी जानी चाहिए. Being citizens in uniform, we have certain duties that come first. Then there are objectives and duties that evolve to us as being part of Indian Railways. There are certain duties and responsibilities, there are certain expectations from us as we are being part of RPF. Then we have certain obligations and duties and objectives as a part of society, as a part of community, as a part of family, and then there are certain personal objectives. Whenever there is a gap in organizational objectives and sub-organizational objectives, or organizational objectives
and personal objectives, then there is a gap in expectations. अगर हमारे अपने जो गोल्स हैं, हमारे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइंड हैं, मतलब हम उस अपने ऑब्जेक्टिव में काम करते समय ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी मीट करता है, उसको भी हम फुलफिल करते हैं, तो देयर इज़ नो गैप इन एक्सपेक्टेशंस. बट इफ आवर ऑब्जेक्टिव्स, हमारी जो रेलवे सुरक्षा बल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि जो ध्येय हैं, जो बताया गया है कि ये हमें करना चाहिए, वो अगर इंडियन रेलवे के ऑब्जेक्टिव या मिशन से मेल नहीं खाते, कॉन्फ्लिक्ट होता है या गैप होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय रेलवे जो हमसे एक्सपेक्ट करती है वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे. मीन्स देयर इज ए गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज एंड delivery of RPF. So before going into that direction, we must know what are our objectives or mission areas and what are the objectives of Indian Railways and their mission areas. All of you know, आप सबको पता है कि हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है, हमारा एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है. आप सब जानते हैं हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि वी शैल प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड रेलवे पैसेंजर्स, पैसेंजर एरियाज एंड रेलवे प्रॉपर्टी, एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रैवलिंग पैसेंजर्स ऑन द इंडियन रेलवेज. फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं. वी शैल रिमेन विजिलेंट टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिहैबिलिटेट destitute children found in railway areas. We will facilitate passenger travel and security by removing all antisocial elements from trains, railway stations, railway premises and passenger areas. Then we will carry on unrelenting fight against criminals in protecting railway property, passengers in passenger areas. We will cooperate with other departments of Indian Railways in improving the efficiency and image of Indian Railways. We will act as a bridge between GRP, local police and the railway administration, and then we will adopt proactively all modern technology based human rights practices, management techniques and special measures in protection of female and elderly passengers and children in pursuit of these objectives. So these are the set of objectives. और उसमें एक specific objective है कि we will cooperate with other departments of the Indian Railways in improving the efficiency and image of the Indian Railways. मतलब कोशिश की गई है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को इंडियन रेलवेज के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन किया जाए. लेकिन हमें ये देखना है कि इंडियन रेलवेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका मिशन एरिया क्या है, ताकि अलाइनमेंट में अगर कोई डिफरेंस है तो हमें वो पता चले. आप सब जानते हैं रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य हैं हम. कोई अभी से है, कोई कई सालों से है. मैंने भी इस फोर्स में करीब 27 बरस गुजारे हैं. तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, इसका क्रूशियल रोल है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स और कार्गो, और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से पूरे भारत में फैला हुआ है उसके प्रोटेक्शन के लिए. भारतीय रेलवे का जो विजन है वो हमको जानना ज़रूरी है, ये पता करने के लिए कि क्या हमारा विजन और ऑब्जेक्टिव और हमारा मिशन एरिया जो है वो उससे मैच करता है कि नहीं, कहीं दोनों के बीच में गैप तो नहीं है. भारतीय रेलवे का ऑब्जेक्टिव या मिशन या विजन हमको एक तरफ जाने के लिए कहता है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो मिशन और ऑब्जेक्टिव है वो दूसरी तरफ हमको घसीटता है. तो अगर इस प्रकार डाइवर्शन होगा तब एक्सपेक्टेशन में गैप आना स्वाभाविक है. अगर अलाइनमेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव का ऑर्गेनाइजेशनल और सब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में, तो फिर एक्सपेक्टेशन में गैप होना कतई संभव नहीं है.
है। इसीलिए अगर अलाइनमेंट नहीं है तो सब ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन को बहुत ज़रूरी है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन और सब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल के साथ अलाइन किया जाए, एक सीध में किया जाए, ताकि जो हमको ऑर्गेनाइजेशन कहता है वो करते वक्त जिस रास्ते में हम जा रहे हैं उसी रास्ते में जाते हुए हमारे सब ऑर्गेनाइजेशन की और हमारी पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं, पूरी हो जाएं। तो ये जानने के लिए हमें ये ज़रूर जानना है कि हमारे इंडियन रेलवे का विज़न क्या है। आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि इंडियन रेलवे का विज़न जो है प्रॉपरली डिलीनिएटेड और कंसाइज करके पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू एंड रीड इट। आई विल रीड इट फॉर यू टुडे। इंडियन रेलवेज का ऑब्जेक्टिव और इंडियन रेलवेज का विजन है दैट इंडियन रेलवे शैल प्रोवाइड सेफ, efficient, affordable, customer focused and environmentally sustainable integrated transportation solutions। इसमें अलग अलग फ्रेजेस पे जोर दिया गया है। सेफ मतलब ये जो काम कर रहा है उसमें 100% सेफ्टी है, संरक्षा है। इफ़िशिएंट है यानी अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से यूटिलाइज करते हुए जो सर्विसेज इंडियन रेलवे देती है वो कस्टमर जो चाहता है वैसी सर्विस मिलती है। अगर कस्टमर को समय पे पहुंचना है तो समय पे पहुंचाती है। अगर कस्टमर को एक बेसिक कंफर्ट लेवल चाहिए ट्रैवल करने में तो वो बेसिक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करती है। अगर कस्टमर को चाहिए कि सेफली उसको जाना है तो वो सेफ्टी भी उसको प्रोवाइड करती है अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से उपयोग करते हुए। साथ ही अफोर्डेबल भी है, यानी जो कस्टमर है, हमारा जो मेजर चंक ऑफ कस्टमर है वो हमारे सर्विस को अफोर्ड कर सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ताकि उतने ही पैसे में जितना उसको कोई पेइंग कैपेसिटी है, जितना वो एक जर्नी के लिए खर्च करना चाहता है या अपने कार्गो को एक जगह से दूसरी ओर पहुंचाने के लिए खर्च करना चाहता है, उतने ही पैसे में उसको वो सुविधा उपलब्ध कराती है इंडियन रेलवे। कस्टमर फ्रेंडली है, कस्टमर फोकस्ड है और ऐसा है जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। मतलब इस प्रकार इसके परिचालन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे कि एनवायरनमेंट जो है डिग्रेड हो या डैमेज हो। इट शैल बी ए मॉडर्न व्हीकल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ इंक्लूसिव भी होता है, एक्सक्लूसिव भी होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ वो होता है जिसका बेनिफिट सोसाइटी के हर तबके तक जाए। एक्सक्लूसिव ग्रोथ में रिच पुअर डिवाइड बढ़ता है, हैव्स और हैव नॉट के क्लासेस क्रिएट होते हैं। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ का जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है वो हर लाभार्थी तक पहुंचता है, हर सिटीजन तक पहुंचता है, देश के हर कोने तक पहुंचता है। कनेक्टिंग रीजन्स, कम्युनिटीज, पोर्ट्स एंड सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, टूरिज्म एंड पिलग्रिमेजेस अक्रॉस द कंट्री। यानी ये जो रेलवे है ये चाहती है कि ये सारे रीजन्स को कनेक्ट करे, देश के कोने कोने को कनेक्ट करे, सारी कम्युनिटीज इससे कनेक्ट हो जाएं। चाहे कम्युनिटी जो है वो असम में या मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ हों, या नोमैड कम्युनिटी जो है जो जम्मू कश्मीर में रहती हो, या भुज और उस इलाके में जो एरिड इलाका है वहाँ रहने वाली कम्युनिटीज़ हो, या साउथ इंडियन कम्युनिटी हो, हर जगह हर कम्युनिटी को कनेक्ट करने का इनका पर्पस है, इनका विजन है। जितने पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना है, जितने सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, चाहे सीमेंट के हों, स्टील के हों, माइंस हों, आयरन ओर के स्टील प्लांट्स हों या पावर प्लांट्स हों, चाहे इस तरह के और भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हों, सबको कनेक्ट करने का पर्पस जो है इंडस्ट्री का, कॉमर्स का, सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसको कनेक्ट करने का, इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर को कनेक्ट करने का, टूरिज़्म की सेंटर्स को कनेक्ट करने का, पिलग्रिमेज सेंटर्स को कनेक्ट करने का, ये विजन जो है वो इंडियन रेलवे का है। अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमारा जो इंडियन रेलवे का विजन है और जो हमारा रेलवे सुरक्षा बल का मिशन और ऑब्जेक्टिव्स है वो मैच करता है कि नहीं। अगर मैच नहीं करता है तो क्या कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में खींचता है।
हमें इंडियन रेलवे के विजन को अपनाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पकड़ना है और आरपीएफ के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए कोई दूसरा रास्ता पकड़ना है क्या? अगर इस प्रकार डाइवर्शंस है ऑब्जेक्टिव्स में तो एक्सपेक्टेशंस में गैप होंगे, और अगर डाइवर्शंस नहीं है, अलाइनमेंट है, इंडियन रेलवे और आरपीएफ के विजन, मिशन, वैल्यूज, कल्चर, ऑब्जेक्टिव्स ये सारे अगर अलाइंड हैं तो कहीं भी एक्सपेक्टेशन में गैप नहीं होता है। लेकिन चूंकि दोनों के वर्ड्स डिफरेंट हैं, फ्रेजेस डिफरेंट हैं, इसीलिए कॉमन जो हमारे रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी या जवान हैं और कॉमन रेलवे ऑफिसर्स जो हैं, उनके बीच में ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, और हो सकता है कि परसेप्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो। इसीलिए हम लोग को पूरी तरह से ये समझना है कि रेलवे हमसे एक्सपेक्ट क्या करती है, और फिर हम अपने कार्यकलाप के दौरान उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं कि नहीं। और हमारा आज का पूरा टॉपिक उसी एक मेन थीम के चारों तरफ घूमेगा। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, जो ऐसा आपको लगेगा कि मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ सब्जेक्ट से, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मेन सब्जेक्ट के, मेन थीम के बैकबोन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे, मिलेंगे, और आपको लगेगा बाद में कि वो जो एक्सपीरियंसेस या इंस्टेंसेस या एनेक्डोट्स मैंने शेयर किए वो थीम के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट थे, ज़रूरी थे। रोल ऑफ आरपीएफ ओवर इंडियन रेलवेज, आपको जानना ज़रूरी है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मिशन एरियाज है, उसको जब हम डे टू डे एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते क्या है, भारतीय रेल में हमारी क्या भूमिका है, हम क्या काम करते हैं। हम मेजरली स्टाफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रेल को हम चलाते नहीं हैं, हम ट्रेन को ड्राइव नहीं करते हैं, हम सिग्नल्स को ऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन जो रेल चलती है, जो सिग्नल्स के ऑपरेशंस होते हैं, जो और भी इंडियन रेलवे के ऑपरेशंस में बेसिक काम होते हैं, उसको करने में हमारा योगदान अहम होता है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम सपोर्ट फंक्शन में है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आरपीएफ का, उसको सपोर्ट करते हैं। लाइन फंक्शन जो है, जैसे ड्राइवर हो गए, गार्ड हो गए, जिनका रेल चलाने में सीधा योगदान है, स्टेशन मास्टर हो गए, इनका रेल चलाने में सीधा योगदान है। आरआरआई केबिन में जो डिप्लॉयड लोग हैं, जो ऑपरेटिंग कंट्रोल में डिप्लॉयड लोग हैं, ये ट्रेन्स को चलाने में सीधे योगदान करते हैं। अगर ड्राइवर ट्रेन पे नहीं आएगा तो ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी, अगर सिग्नल्स ऑपरेट नहीं होंगे तो ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन हमारे नहीं रहने से ट्रेन के ऑपरेशन में सीधे कोई फर्क आएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेन चलेगी, लेकिन अगर हमारा प्रेजेंस इफेक्टिव नहीं हुआ तो उस ट्रेन के चलने में, उस रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपरेशन में ड्यू कोर्स में बाधाएं उत्पन्न होंगी और रेल का एडमिनिस्ट्रेशन चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्टाफ या सपोर्ट फंक्शन में रहते हैं। रेलवे सुरक्षा बल एक डेडिकेटेड फोर्स है जो कि लॉ एंड ऑर्डर रेलवे प्रेमाइसेस में, ट्रेन्स में मेंटेन करता है, पैसेंजर्स और कार्गो को प्रोटेक्ट करता है, और इतना बड़ा जो देश के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है रेलवे का, रेलवे लाइनें हैं, सिग्नल है, स्टेशन हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे भारत में 64 से 65 हज़ार किलोमीटर के एक्सपेंस में फैला हुआ है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, हमारा मेजर पिन पॉइंटेड डिप्लॉयमेंट है, तो हम जो है स्मूथ और सिक्योर ऑपरेशन जो होता है ट्रेन्स का और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। और ऐसा आरपीएफ ही क्यों करता है, आरपीएफ को ही ऐसा रोल क्यों मिला है, अगर इस बारे में हम सोचें तो इट इज़ क्लियर दैट वी आर टेलर मेड to discharge these activities because of our legacy, because of our experience, because of our expertise and because of our area of operation. हमारी legacy है, आज से हम नहीं कर रहे हैं, हम
1854 में 1854 में जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने के लिए चली, तब से किसी न किसी रूप में हम रेलवे की सुरक्षा करने में तैनात हैं, चाहे वो वॉच एंड वार्ड हो, वॉच एंड वार्ड के बाद रेलवे सिक्योरिटी फोर्स हो, या फिर उसके बाद 1957 से वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो। तो हम किसी न किसी रूप में इस रेलवे नेटवर्क में हमेशा रहे हैं और इसकी सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। तो हमारे पास लीगेसी नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है, और इसी एरिया में काम करने का ह्यूज एक्सपीरियंस है, 150 सालों का एक्सपीरियंस है। और चूँकि हमारा यहीं पे काम है, यहीं हमको रहना है, जैसे राज कपूर ने कहा था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हम चूँकि यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं, तो हमारा जो एक्सपर्टीज़ है रेलवे सिक्योरिटी में, हमारा डोमेन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज ज़बरदस्त है, अनमैच्ड है, अनपैरेलल है, हमारा यूएसपी है। हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डेवलप्ड द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज and understanding of the working of Indian Railways over various decades, huge lot of time in the back. We have a lot of history of operating over Indian Railways, and because of that मेरा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस जो है किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा है। हमारा फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऐसा है कि हम इंडियन रेलवे के इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी या पुलिस एजेंसी जो इंडियन रेलवेज़ पे काम कर रही हैं, वो इंडियन रेलवेज़ की पार्ट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का हिस्सा नहीं है। वो एज ए स्टेक होल्डर इंडियन रेलवेज़ के सेटअप के साथ साथ काम करते हैं। हम इंडियन रेलवेज़ के सेटअप के अंदर रह कर के काम करते हैं, इसीलिए हमारे पास वो फंक्शनल नॉलेज है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में अपना स्टेक है। यानी इस इंडियन रेलवे के पार्ट होने के कारण इस इंडियन रेलवे के ऑपरेशन में हमारा अपना स्टेक इन्वॉल्व है। हम मेंबर हैं इस फैमिली के, तो इस फैमिली के मेंबर के रूप में हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं। अगर आउटसाइडर इसको प्रोटेक्ट करे, सेफगार्ड करे, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर काम करता है। लेकिन जब हम परिवार के हिस्सा होते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारा एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जुड़ा हुआ। हमारा इंडियन रेलवे के साथ जुड़ाव जो है एक परिवार के जुड़ाव की तरह है, एक आउटसाइडर के जुड़ाव से ये कहीं अधिक और कहीं बेहतर। लोकल पुलिस जो है वो ओवरबर्डन्ड है, वो अपने ही वर्क से परेशान है, उसके पास इतना ज़्यादा काम है कि रेलवे सिक्योरिटी के काम के लिए उसको अपना रिसोर्स डाइवर्ट करना उसके लिए मुश्किल है। इसीलिए देयर वाज अ नीड ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी एजेंसी, जिसको हम लाखों समय से, काफ़ी समय से मीट कर रहे हैं और हमेशा इस कसौटी पे खरे उतरे हैं। इसीलिए there has always been a need of a specialized railway security agency that we have been meeting over a long period of time. तो वो हम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ज़रूरत है इंडियन रेलवेज़ को। और हमारी यूएसपी जो है, मैं हर अपने टॉक में अपनी यूएसपी बताता हूँ। इंडियन जो भारत का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो एक मीटिंग पॉइंट है सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच में। जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो नॉर्मली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं हैं। जैसे हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, बट दे आर नॉट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। उनके पास लीगल पावर्स नहीं है, वो लीगल पावर्स एक्सरसाइज नहीं करते। Then there are central law enforcement agencies like CBI, NIA, ED, so to say Narcotic Control Bureau, and these agencies are central law enforcement agency, but they are not central forces. Railway Protection Force is a force which is not only a central force but also a central law enforcement agency. We are meeting point of these two vertices of a triangle.
तो हम सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी हैं और सेंट्रल फोर्स भी हैं। दूसरा, हमारी पहुंच भारत भर में व्यापक है। इट स्प्रेड्स अक्रॉस इंडिया, नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे आज के दिन में बडगाम या बारामूला हो, चाहे कच्छ का नालिया स्टेशन हो या तिनसुकिया के बॉर्डर के स्टेशन हो, हर जगह रेलवे सुरक्षा बल की पहुंच है, रेलवे सुरक्षा बल का प्रेजेंस है। अगर हम दूसरे सेंट्रल फोर्सेस को देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नॉर्मली बॉर्डर में तैनात है, कुछ दूसरे नक्सल एरिया में या डिस्टर्ब एरिया में तैनात है, लेकिन नॉर्मली बॉर्डर एरिया में तैनात है। सीआरपीएफ जो है वो या तो आईएस ग्रिड में है या नक्सल अफेक्टेड एरिया में है या जीएनके में है, नॉर्थ ईस्ट में है। रेस्ट ऑफ इंडिया में उसकी पहुंच उतनी नहीं है। देन एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स ये बॉर्डर एरिया में तैनात है। सीआईएसएफ या तो एयरपोर्ट्स में है या इंडस्ट्रीज में है। पूरे भारत में तैनाती सिर्फ एक सेंट्रल फोर्सेस की है और वो है रेलवे सुरक्षा बल। हमारा जुरिस्डिक्शन जो है स्टेट बाउंड्री को कट करता है। मतलब अगर हमको किसी क्रिमिनल को परसू करना है तो हम उसको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक परसू कर सकते हैं, अहमदाबाद से लेकर के गुवाहाटी तक परसू कर सकते हैं बिना किसी स्टेट बाउंड्री के इंटरफेरेंस की। लेकिन स्टेट पुलिस के साथ ऐसा नहीं। इसीलिए हमारा जो इफेक्टिवनेस है इन परसुइंग क्रिमिनल्स हु आर अंडरगोइंग जर्नी थ्रू ट्रेन्स सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर। तो इसीलिए आरपीएफ को रेलवे सुरक्षा में इन सभी कारणों के लिए तैनात किया गया है और ये वेरियस रोल्स निभाता है। जैसे मैंने बताया, रेल्स का गार्डियन है। रेल में जो रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में एक सेंटिनल की तरह काम करता है, पैसेंजर्स की सेफ जर्नी इंश्योर करता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है और रेलवे परिसर में और ट्रेनों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इसकी बहुत बेहतर भूमिका रहती है। मैंने अपने टॉपिक को अलग अलग हिस्सों में बांटा है ताकि क्या एक्सपेक्टेशन रेलवे की आरपीएफ से है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके मैं आपको उसको और अधिक सिंपल बना दूं ताकि वो आपके समझ में आए। तो हमने इस टॉपिक को 6 हिस्सों में बांटा है। क्या क्या एक्सपेक्टेशन है रेलवे से, रेलवे को आरपीएफ से, उसको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ मेमथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोलिंग स्टॉक स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। दूसरा है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स एंड सीमलेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेलवेज। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चौथा है डिजास्टर मैनेजमेंट। पांचवा है रैशनलाइजेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ एफिशिएंसी और छठा है सोशल कमिटमेंट। इन 6 एरियाज में रेलवे हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है और हमसे कुछ परफॉर्मेंस चाहती है। जहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन और हमारा परफॉर्मेंस मीट करता है, मैच करता है, वहाँ पे रेलवे हमारे काम से सेटिस्फाइड होती है। और जहाँ पे डाइवर्शन होता है, उनका एक्सपेक्टेशन या तो अनरीजनेबल है या रीजनेबल है तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस के बीच में गैप दिखती है और उस जगहों पे रेलवे हमारे परफॉर्मेंस को चाहती है कि और बेहतर हो और अच्छा हो, उनके एक्सपेक्टेशन तक आए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि क्या उनका एक्सपेक्टेशन है हम समझें। तो मैं एक एक करके टॉपिक पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ सब टॉपिक पे, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ मैमथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोलिंग स्टॉक स्प्रेड अक्रॉस द नेशन। रेलवे जो है भारत सरकार के मेजर कस्टोडियंस ऑफ लैंड में एक है। जो सरकारी भूमि है वो या तो इंडियन आर्मी के पास है, आर्म्ड फोर्सेस के पास है, कैंटोनमेंट इत्यादि के रूप में, या फिर रेलवे की ताबे में है, रेलवे के ताबे में है, रेलवे के कस्टडी में है, जो कि रेलवे अपने काम के लिए यूज़ करती है और अगर यूज़ नहीं की हुई है तो भविष्य के यूज़ के लिए उसको रखा हुआ है। जब रेल भूमि भविष्य के लिए यूज़ के लिए रखी जाती है तो वो
एनक्रोचमेंट का एक बहुत वल्नरेबल पॉइंट बन जाती है। आप जानते हैं देश में काफ़ी लोग हैं जो कि माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, जिनकी अपनी पर्सनल होल्डिंग्स स्पेशली अर्बन एरियाज़ में या तो लैंड होल्डिंग्स नहीं है या बहुत कम है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कि भूमिहीन लोग हैं, वो देखते हैं कि रेलवे लैंड खाली पड़ा हुआ है, इस पर कोई है नहीं। और कुछ अनस्क्रूपुलस लोग भी जो कि क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो कि लैंड ग्रैबर्स हैं, वो भी इस प्रकार की भूमि पे अपनी गिद्ध भरी निगाह रखते हैं और जहां ऐसा लगता है कि कोई उनको देखने वाला नहीं है, वो उस भूमि पर कब्जा करके और उसको अपने यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। अतः इस प्रकार के जो एनक्रोचमेंट्स होते हैं रेलवे लैंड में, रेलवे सुरक्षा बल उन एनक्रोचमेंट के न होने देने में, और अगर एनक्रोचमेंट हो गया है तो उन एनक्रोचमेंट्स के रिमूवल में अपनी भूमिका निभाता है। हर डिविजनल लेवल पे या यूनिट लेवल पे एक स्टेट ऑफिसर होता है रेलवे का, और वो स्टेट ऑफिसर जिम्मेदार होता है अब उस रेलवे भूमि की जो भी उनके ताबे में है के प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर इस प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट होता है या पाया जाता है रेल भूमि में, तो उससे रेल भूमि को खाली कराने के लिए वो PPE एक्ट के अंदर कार्रवाई करते हैं। और जब एनक्रोचमेंट हटाने का समय आता है तो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर इशू भी बन जाता है, तो इसीलिए फोर्स की ज़रूरत होती है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को कहा जाता है कि भाई आप फोर्स दीजिए और आप लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करिए ताकि उनका भी फोर्स आए, मजिस्ट्रेट की तैनाती इत्यादि हो, ताकि ये जो एनक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम है वो ढंग से स्मूथली, पीसफुली कंडक्ट हो जाए। और जब एक बार रेल भूमि खाली हो जाए तो उसको किस तरह से घेर करके उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके बारे में भी रेलवे सुरक्षा बल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखिए कि इसमें भविष्य में कोई एनक्रोचमेंट नहीं हो जाए। तो रेलवे एक्ट में एक सेक्शन है 147 जिसमें कि रेलवे एरिया में ट्रेसपास करना जो है उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो उसके अंदर लीगल एक्शन लेते हैं और जो ऑलरेडी एनक्रोच्ड लैंड है उसको खाली कराने के लिए स्टेट ऑफिसर PPE एक्ट के अंदर कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह से दो तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक RPF करती है और एक स्टेट ऑफिसर करते हैं। और अगर आपको इंक्रोचमेंट रिमूव करना है तो पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी रेलवे में ज़मीन कहाँ कहाँ पे है और उसकी क्या क्या स्थिति है, कहाँ इंक्रोचमेंट है, कहाँ नहीं है, और इस पर रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, रेगुलर उसका वेरिफिकेशन करना है, रेगुलर डेटा तैयार करना है, ताकि हमको पता चले कि हमारे फला फला जगह पे फला फला लैंड में उसके मैप के अनुसार इस जगह पे इंक्रोचमेंट है अथवा नहीं है। तो we have to conduct regular inspection to identify and document encroachments on railway land and then implement the eviction processes in coordination with local authorities for removal of encroachment. Preventive measures जो है वो भी लेना होता है कि अगर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपायर्स हैं तो उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू करना, और प्रिवेंटिव मेजर्स करना जैसे फेंसिंग करना, सर्वेलेंस करना और इरेगुलर पेट्रोल्स वहाँ चलाना ताकि फ्यूचर एनक्रोचमेंट उस लैंड में नहीं हो। There are certain successful stories, हमेशा उसको शोकेस करना चाहिए कि भाई देखिए यहाँ पे इतना एनक्रोचमेंट था और उसको हमने इस तरह से हटाया। मुझे याद है एज यंग ASC 1999 जब मैं कटिहार डिवीज़न में पोस्ट हुआ तो कटिहार डिवीज़न का जो ऑफिसर कॉलोनी था उसमें ह्यूज एनक्रोचमेंट थे। यहाँ तक कि ADRM के बंगले के सामने झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। एक जगह है OT पार्क, एक जगह है साहेब पार्क। इन सब जगहों में रेलवे लैंड पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ था और हम लोगों ने मैसिव एनक्रोचमेंट, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चला करके इन जगहों से अनऑथराइज एनक्रोचर्स को हटाया, रेलवे लैंड को रिट्रीव किया। और रेलवे लैंड जब रिट्रीव हुआ करोड़ों में, उसका फिर फ्यूचर यूटिलाइजेशन हुआ, उसमें रेलवे की परिसंपत्ति बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और भविष्य में एनक्रोचमेंट न हो उसके लिए भी उसको घेर घार के कार्रवाई की गई। तो इस तरह के सक्सेस स्टोरी हमेशा शेयर करते रहना चाहिए और ये भी देखना है कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ हैं, किस किस डिग्री के चैलेंजेस हैं,
कौन लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसको तुरंत मीट किया जा सकता है, और कौन इतने हार्ड इंक्रोचमेंट्स हैं जिसमें कि मीट करने के पहले प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर उसका इम्प्लीकेशंस, लीगल इम्प्लीकेशंस, उनके लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस सबको जज करना बहुत ज़रूरी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के दौरान एक और जो एरिया ऑफ वर्क है वो है एक्शन अगेंस्ट सैबोटाज एंड ट्रैक टेम्परिंग। आप जानते हैं कि 64,000 से ज़्यादा रूट किलोमीटर्स, अब तो और भी ज़्यादा हो गया, ये मैं 2-3 साल पुराना डेटा बता रहा हूँ, तो रूट किलोमीटर्स में इंडियन रेलवेज अक्रॉस द कंट्री फैला हुआ है, और इसके लाखों करोड़ के एसेट्स बिखरे पड़े हैं देश के कोने कोने में। इसमें से जो रनिंग ट्रैक्स हैं जिसमें कि रेलगाड़ियाँ चलती हैं, उसमें अगर कोई छोटा सा भी व्यवधान आए तो न सिर्फ रेल का ऑपरेशन इफेक्ट होगा, बल्कि रेल की और रेल में चलने वाले पैसेंजर की सेफ्टी भी इफेक्ट होगी। डिरेलमेंट हो सकता है, रेलवे एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए ये जो रेलवे सिस्टम का रनिंग लाइंस है, ट्रैक है रनिंग, उसको ये देखना है कि उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और रेलवे के चक्के जो हैं उस रोबस्ट रेल पटरियों पर चलते रहें, कहीं भी कोई भी इस प्रकार का व्यवधान या आउटसाइड एलिमेंट या फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है उस रेल पे न रखा हो। उसके लिए हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं कि क्या क्या है रिगरस सेफ्टी मेजर्स, जो कि गैंगमैन की पेट्रोलिंग है वो तो है ही है, जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं उसमें गैंगमैन के साथ आरपीएफ भी लगा के या होमगार्ड लगा के पेट्रोलिंग की जाए, या जो ऐसे क्रूशियल एरियाज़ हैं जैसे टनल्स हैं, ट्रैक्स हैं, ब्रिजेज हैं, वहाँ पे स्टेट पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करके होमगार्ड इत्यादि की तैनाती कराई जाए, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हों। सर्वेलेंस सिस्टम प्लेस में हों, यानी अगर मैनुअल सर्वेलेंस की अपनी एक लिमिट होती है तो हमेशा टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और या तो ड्रोन के साथ या सीसीटीवी लगा करके, और ऐसा सीसीटीवी हो जो फेल सेफ हो, फुल प्रूफ हो, वैंडल प्रूफ हो। ऐसा नहीं कि कोई उसको पत्थर से मार के तोड़ दे या कोई जाके उसको टैम्पर कर दे या उसमें बिजली की सप्लाई जो है उसको ही काट दे। तो इस प्रकार जो है टैम्पर वैंडल प्रूफ सीसीटीवी होना चाहिए। सर्वेलेंस सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी लगाइए, और ये कॉस्ट इफेक्टिव ही हो, क्योंकि ये ह्यूज एरिया है और इसमें अगर कॉस्ट का स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा, वायबल नहीं होगा। सिक्योरिटी पेट्रोलिंग, जैसा मैंने कहा कि जिस वल्नरेबल एरिया को पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ट्रैक टेम्परिंग पहले भी हुआ है, होने के चांसेस हैं, इंटेलिजेंस इनपुट है, तो उन एरियाज़ में जो है ट्रैक पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग गैंगमैन और आरपीएफ के या पुलिस के साथ करना ज़रूरी हो गया है। उसको करना है और उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है। और जैसा मैंने कहा एरिया स्पेसिफिक हाई रिस्क एरिया में अलग से और स्ट्रैटेजी बनानी है। हो सकता है वहाँ सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के अलावा पिकेट स्किल को लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, सीसीटीवी लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ पे रात में ड्रोन से पहरा देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक जो है वहाँ भी स्ट्रैटेजी लगाने की ज़रूरत होती है। एक इशू जो अब हाईलाइट हुआ है या लाइमलाइट में आया है, और हमेशा से हम ये मानते आए हैं कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, लेकिन आज के डेट में आई थिंक रेलवे सुरक्षा बल की ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, वो है सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स। रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है, हो सकता है कि उस समय वो रेलवे प्रॉपर्टी नहीं हो, उस समय वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग काम कर रहे हों और कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग रेलवे एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो टूल्स और इक्विपमेंट्स जो काम में लगाए होते हैं हो सकता है वो रेलवे प्रॉपर्टी नहीं हो, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन राष्ट्र के लिए और रेल के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं नॉर्मली ऐसी जगहों पे लगते हैं जहाँ पर उस क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट समय पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर रेलवे प्रोजेक्ट समय पे इम्प्लीमेंट नहीं हो, एग्जीक्यूट नहीं हो, टाइम ओवर रन हो जाता है, कॉस्ट ओवर रन हो जाता है,
रेलवे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट कर जाता है, और जिस पर्पस के लिए वो प्रोजेक्ट लाया जाता है वो पर्पस, बेसिक पर्पस डिफीट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, दंतेवाड़ा क्षेत्र में बैलाडीला की माइंस हैं, NMDC की आयरन ओर माइंस हैं बैलाडीला की पहाड़ियों में। वहाँ पे विश्व का, देश का ही नहीं विश्व का सबसे रिच आयरन ओर मिलता है, लेकिन NMDC की समस्या ये है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी से बढ़ाने में उनका कोई फ़ायदा या देश का कोई फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक वो बढ़े हुए प्रोडक्शन को वहाँ से इवैक्यूएट समय पे न किया जाए। इवैक्यूएट करने के लिए उनके पास पहले एक लाइन थी, आज 2 लाइन है। 2 लाइन में जितनी ट्रेनें चला सकते हैं वो सैचुरेट हो चुकी है कैपेसिटी, अब उससे ज़्यादा ट्रेनें वहाँ नहीं चल सकती। और अगर माइंस में आयरन ओर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो तीसरी लाइन को इम्प्लीमेंट करना होगा। तीसरी रेलवे लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस रेलवे प्रोजेक्ट को समय से पूरा करना होगा। अनफॉर्चुनेटली ये 3rd लाइन का जो प्रोजेक्ट है, के लाइन बोलते हैं इसको, किरंदुल से लेकर के ग्वालियर के जस्ट पहले तक की लाइन, वहाँ तक की लाइन के लिए 3rd लाइन का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर पिछले 6-7 साल से पड़ा है, लेकिन चूंकि वो इलाका नक्सल प्रभावित है, इनफैक्ट भारत के सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो उस इलाके में इस प्रकार के रेलवे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत दुरूह समस्याएं हैं। आसपास में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है, लेकिन उनका जो ग्रिड है उसमें रेलवे वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है, सोल एस्पेक्ट नहीं है। इसीलिए पूरा का पूरा रेलवे सिक्योरिटी में, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की सिक्योरिटी में उन फोर्सेस का फोकस नहीं है, जिसके कारण ये नक्सल जो ताकतें हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स को काम नहीं करने देती। उनको कहती हैं कि आप हमको लेवी दो, उनको कहती हैं कि आप हमको रैंसम दो, आप हमको कट मनी दो, नहीं तो हम आपके इक्विपमेंट्स जला देंगे, आपके लोगों को हैरास करेंगे, परेशान करेंगे, किडनैप कर लेंगे, जान से मारने तक की धमकी भी देते हैं। जगह जगह पर पोस्टर्स, बैनर्स लगा देते हैं, ट्रेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, वॉकी टॉकी छीन लेते हैं, और पोकलेन और डंपर्स इत्यादि को जलाने की तो लगातार ही घटनाएं होती रही हैं, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से सैंक्शन होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट, 3rd लाइन प्रोजेक्ट जो राष्ट्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में एक यूनिट है कोरस, जिसको कि हमने स्पेशली ट्रेन कमांडो की यूनिट के रूप में इस्टेब्लिश किया है। जब से वो कोरस की 3 कंपनियां उस इलाके में तैनात हुई हैं, रेलवे का जो के लाइन के 3rd लाइन का प्रोजेक्ट है वो बहुत जोर पकड़ चुका है और अब जल्द से जल्द कंप्लीट होने की स्थिति में है। तो इस तरह से हम लोग रेलवे प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने में अपना बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दे रहे हैं। और भले ऐसा कॉमन RPF के कर्मी को लगे कि ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि इसमें रेलवे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, पैसेंजर इन्वॉल्व नहीं है, पैसेंजर एरिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि इस राष्ट्रहित सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। इसीलिए अगर राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो हमारा मैंडेट, अगर रेलवे प्रॉपर्टी और पैसेंजर एरिया और पैसेंजर ही है, तो उस मैंडेट को हमको मॉडिफाई करना है और हमको राष्ट्रहित में इन रेलवे प्रोजेक्ट को सिक्योर करने में अपनी भूमिका निभानी है। और ये इसीलिए रेलवे का जो एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे की सिक्योरिटी में, रेलवे प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी में हम अपना योगदान दें, उसको हमको एक्सपेक्टेशन के अनुसार परफॉर्म करना ज़रूरी हो गया है। उसके बाद चूँकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चारों ओर फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है, तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हम करीब अपने लीगल पावर को एक्सरसाइज करते हुए करीब साल भर में 50 करोड़ के आसपास की संपत्ति, चोरित संपत्ति रिकवर करते हैं। करीब 4 या 5 हज़ार आदमियों को गिरफ्तार करते हैं। तो 50 करोड़ की संपत्ति रिकवर करना रेलवे की जो परिसंपत्तियों का जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में बहुत पीनट्स आपको लगेगा।
तथापि हैविंग सेड दैट, हम जो एक्शन लेते हैं उससे जो डिटरेंस क्रिएट होता है, उससे जो फर्दर क्राइम प्रिवेंट होता है, उससे जो क्रिमिनल्स के मन में भय व्याप्त होता है, उसका इम्पैक्ट रेलवे प्रॉपर्टी की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी पर पड़ता है। इसीलिए हमारा वो काम भी, थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको उसको लगातार करते रहना है। ये रेलवे के एक्सपेक्टेशन को मीट करने में अपना योगदान ज़रूर देता है। इसीलिए हम प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं उनको, एसेट प्रोटेक्शन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ रोबस्ट सिक्योरिटी प्लान लगाते हैं ताकि वो जो एसेट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें। इंसिडेंट अगर कोई होती है तो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल हो जाता है, हमारे रेलवे ट्रैक, हमारे स्टेशन, हमारे सिग्नल्स, ये सब जो है इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट होते हैं। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल होगा तो ऑपरेशन रिलायबल होगा, ऑपरेशन रिलायबल होगा तो कस्टमर खुश होगा, जनता खुश होगी, डिसरप्शंस घटते हैं। अगर थेफ्ट्स होते हैं तो डिसरप्शंस कॉज होते हैं। आप ये देखिए कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, सिग्नल बॉक्स होता है, उसमें एक कॉपर का प्लंजर होता है। उस कॉपर के प्लंजर को अगर चोर जो है उसको निकाल ले तो उसकी वैल्यू अगर 200-250 रुपये बाज़ार में होगी, उससे हो सकता है उसको कुछ पैसा मिल जाए, 250 रुपये में उसको 100-150 रुपया ही मिल जाए। लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन होता है, उसके कारण सिग्नल फेल हो जाता है, उसके कारण गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी रुक जाने के कारण जो इंजन है, जो ट्रेन है, उसका जो टाइम है उसका लॉस होता है। टाइम जो है आप जानते हैं कि टाइम मनी है, टाइम इज़ मनी। तो टाइम का अगर लॉस होता है तो रेलवे का मनी वैल्यू का लॉस होता है। और जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पाते, उनका जो लॉस होता है वो अलग। तो सिर्फ 250 रुपये का सिग्नल बॉक्स का प्लंजर चुराने के कारण वो देश को कितना डैमेज करते हैं, वो उस चीज़ से अनजान होते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के सिग्नल बॉक्सेस जो हैं उसमें प्रोटेक्शन मेजर्स लगें और उसको जो है चोर आसानी से उसको तोड़ करके उसके अंदर का कंपोनेंट चोरी न कर ले। और इस प्रकार से हम रेलवे में ट्रस्ट डेवलप करते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ, रेलवे की संपत्ति है तो ये रिलायबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल है, इसमें हम ट्रैवल करेंगे तो हम समय से सेफली पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार कम्युनिटी में रेलवे के प्रति ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करने में, उसको बनाने में रेलवे सुरक्षा बल अपनी भूमिका निभाता है, रेलवे प्रॉपर्टी को सिक्योर करते हैं। उसके बाद दूसरा सब कैटेगरी जो है जिसमें हम रेलवे का एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें जानना ज़रूरी है, वो है कि किस प्रकार से ट्रेन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सीमलेस और स्मूथ ऑपरेशन में हम अपनी भूमिका निभाते हैं। अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स हैं, किस प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन हटाते हैं, रेल रोको इत्यादि में कार्रवाई करते हैं। जो मेला, कुंभ मेला, गोदावरी पुष्करम, इस प्रकार के मेला जो लगते हैं, माघ मेला, इसमें हम कार्रवाई करते हैं। फेस्टिवल रश होता है दुर्गा पूजा के टाइम में या छठ के टाइम में, जो फेस्टिवल रश होता है उसमें क्राउड बंदोबस्त में हमारी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। फिर रेलवे फंक्शंस होते हैं, जब प्रधानमंत्री जी के या इस तरह के वीआईपी फंक्शंस होते हैं, उसमें भी रेलवे चाहती है कि हम जो है लीड रोल लेकर के अपनी भूमिका अदा करें ताकि वो फंक्शंस ढंग से निपट जाए, शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। फिर इस तरह के और बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हाफ ईयरली एमपी मीटिंग्स होता है, MRMOSR विजिट या दूसरे वीआईपी विजिट्स होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसके ट्रैफिक बंदोबस्त में भी, ताकि वेहिकुलर फ्लो जो है चलता रहे, कहीं ट्रैफिक जैम न हो जाए, व्हीकल्स आड़े तिरछे पार्क न हो जाए जिसके कारण फ्लो रुक जाए, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारी भूमिका है। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जो है स्टेशन के उनको भी मेंटेन करने में भूमिका है। और पूरे स्टेशन और ट्रेन में ऑर्डरलीनेस मेंटेन करने में भूमिका है। जो ट्रेन से कैटल और हमारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं ह्यूमन रन ओवर के, उनको भी कंट्रोल करने में हमारी थोड़ी सी या जैसी भी है एक भूमिका है। रेलवे हमसे एक्सपेक्ट करती है कि इसमें हम अपना
योगदान, पॉजिटिव योगदान है। और रेलवे के कई सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं, उनको सिक्योरिटी ऑफ स्पेशल ट्रेन्स, उनमें हमारी भूमिका है। इस प्रकार से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमको हमारा इंटरवेंशन रेलवे ज़रूरी समझती है, ताकि उनका ट्रेन्स ठीक से ऑपरेट होता रहे, स्मूथली ऑपरेट होता रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सीमलेस ढंग से चलता रहे। इसी क्रम में हम जो स्मूथ ऑपरेशन ट्रेन का या एडमिनिस्ट्रेशन का करते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, दूसरे सेंट्रल एजेंसी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो हम लोग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, उनके कंसर्न समझते हैं और उनको एक धरातल पे लाते हैं, सेम लेवल पे लाते हैं, ताकि वो जो काम करें और हम जो काम करें वो एक दूसरे से सिनर्जी में हो, 1 जोड़ 1 3 हो, 1 जोड़ 1 2 नहीं हो, या 2 से कम नहीं। क्राउड कंट्रोल और मेला ड्यूटी में, रेल रोको बंदोबस्त में, एसीपी सिग्नल टैंकरिंग में, एक्सेस कंट्रोल सर्कुलेटिंग एरिया में, टिकट चेकिंग में, एलसी गेट में, सेफ्टी ड्राइव में, स्टोन पेल्टिंग इत्यादि रोकने में, अनटूवर्ड इंसिडेंट रोकने में, और पैसेंजर ओवरक्राउडिंग और सीट कॉर्नरिंग इत्यादि रोकने में हमारी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है। हम जब स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स की बात करते हैं तो इसमें एस्पेक्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन हटाने का। कोई रेलवे ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जो डिले कॉज कर रहा हो, जिसके कारण लेट हो रही हो ट्रेनें, तो उसको हटाना है। और ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसी प्रक्रियाएं अपनानी हैं जिससे कि डेब्री या ऑब्स्टेकल्स जो रेलवे ट्रैक पे आ जाए उसको किस तरह से समय पे किनारा हटाया जाए। या अलग अलग डेब्रीज होते हैं, या कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है, या कोई मटेरियल रखा हुआ है, कोई स्टोन गिर गया, या कोई स्टोन किसी ने आके रख दिया, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रैक पे रख दिया। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं जिसको कि समय पे हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ट्रेन रुक जाएगी। और अगर ट्रेन रुक जाएगी तो एक ट्रेन रुकेगी, उसके पीछे ट्रेनों की बंचिंग होती जाती है और पूरा का पूरा ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो आउट ऑफ गियर हो जाता है। इसीलिए हम लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा काम कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस रिमूव किया जाए। उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें हम बनाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी प्लेस ऑफ ऑकरेंस में पहुंच करके और रिस्पॉन्ड करें और रिमेडियल मेजर्स ले, ताकि ऑब्स्ट्रक्शंस जल्दी से जल्दी हटे। दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो तो कोऑर्डिनेट भी करें। क्राउड कंट्रोल करते हैं मेला में, फेस्टिवल में, माघ मेला, कुंभ मेला, सब में क्राउड कंट्रोल में हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। और ये क्राउड कंट्रोल जो है इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि जरा सा इसमें चूक हुई तो बहुत इसके बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं याद दिला दूँ, कुंभ मेला 2013 इलाहाबाद स्टेशन में FOB पे कितने लोग स्टैम्पेड में मर गए थे। तो इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं अगर हमें इसमें प्रोएक्टिव मेजर्स हमने नहीं लिए, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी। अगर FOB कम है तो FOB बढ़ाने होते हैं, और अगर FOB बढ़ाने के बाद भी ऐसी स्थिति आती है कि FOB पे स्टैम्पेड की सिचुएशंस बनती है तो FOB से हम लोग को क्राउड को डाइवर्ट करना है, होल्ड अप्स बनाने हैं, क्राउड को स्टेशन से दूर रोक लेना है। लेकिन और यदि क्राउड स्टेशन पे है तो उसको जल्दी से जल्दी नई ट्रेनें, फ्रेश ट्रेनें जो है, स्पेशल ट्रेनें वो लगा करके स्टेशन से पैसेंजर्स को जल्दी से जल्दी निकालना है, ताकि पैसेंजर्स का लोड स्टेशन पे जल्दी से जल्दी घटे। उसके लिए मैंने बहुत सारे डूज और डोंट्स बनाए हैं। सबको एक बार में उसके बारे में चर्चा करना जो है काफ़ी लंबा सेशन चला जाएगा, इसीलिए ये स्लाइड जो है आप देख लीजिएगा कि डूज में क्या क्या है, डोंट्स में क्या क्या है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस प्रकार के क्राउड कंट्रोल सिचुएशंस में हम डूज और डोंट्स का हमेशा पालन करते रहें। किस तरह से रेल रोको और एजिटेशन के दौरान हमको कार्रवाई करनी है, किस तरह से हमको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, पहले से ही प्लान करके आना है। रिसोर्स का, मैन पावर का प्रॉपर मोबिलाइजेशन करना है, प्रॉपर इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, ताकि हमारी जो कार्रवाई हो पिन पॉइंटेड हो, इफ़िशिएंट हो और उसमें कम से कम फोर्स का प्रयोग करना पड़े।
बार बार मैंने कई जगहों पे पॉइंट आउट किया है कि जब भी रेल रोको में हमारे बंदे जाते हैं, ज़्यादा फोर्स क्यों यूज़ कर देते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो आरपीएफ के लोग हों। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से इक्विप करके जाएंगे तो हो सकता है कि हम फोर्स जो है वो एडिक्वेट या मिनिमम यूज़ करें। नॉर्मली जब हम जाते हैं तो पूरी तरह से तैनात होके नहीं जाते, या तो अपने जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, प्रोटेक्शन आर्मर्स हैं, वो नहीं पहनते। और क्राउड जब सामने आ जाती है, हमेशा जब क्राउड सामने आएगी तो सबसे पहला काम करेगी एजिटेटेड क्राउड जो है, नारेबाजी करने के बाद स्टोन पेल्टिंग करेगी। स्टोन पेल्टिंग अगर करेगी और हमारे पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साधन नहीं है तो किसी न किसी हमारे बंदे को चोट लग जाएगी, और चोट लगने के बाद हमारे बंदे के शरीर से या सर से या बॉडी से जब खून निकलता है, उस खून को देखने के बाद बाकी फोर्स के मेंबर और एजिटेट हो जाते हैं, और उस एजिटेशन में, उस गुस्से में, उस नाराज़गी में वो ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती है। इसीलिए अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करके इस तरह के सिचुएशंस में जाना है। इस तरह की स्थितियों में जाने से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि सारे प्रोटेक्शन मेजर्स, चाहे हमारे पास बॉडी प्रोटेक्टर हो या शिन गार्ड हो या इस प्रकार के सारे हेलमेट्स लगे हुए हों, गॉगल्स, प्रोटेक्टिव गॉगल्स हो, ताकि अगर पत्थरबाजी होती भी है तो पत्थरबाजी को हम झेल लें, उससे हमारा बॉडीली डैमेज नहीं हो। बॉडीली डैमेज नहीं होगा तो उससे हमारे ऊपर हम जो गुस्सा करते हैं, हम जो नी जर्क रेस्पॉन्स करते हैं, उस नी जर्क रेस्पॉन्स से अपने आप को बचाएंगे। क्राउड पे जब बल प्रयोग होता है तो क्राउड और भड़कती है और नाराज होती है, और फिर सिचुएशन हाथ से निकल जाता है, फिर गोलियां चलानी पड़ती हैं, और उसके बाद मामला जो है बिगड़ता ही जाता है। इसीलिए सिर्फ एक चीज़ करने से, अपने आप को प्रोटेक्ट करके अगर हम जाएं इस तरह के सिचुएशंस में, तो बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सकता है। ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह का सिचुएशन हो या इस तरह के सिचुएशन का अंदेशा हो, तो सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। साथ ही जब भी आप इस तरह के क्राउड कंट्रोल के सिचुएशन में जाते हैं, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ज़रूर कोलैबोरेट करिए। मैं इसी तरह का एक सीन जो है, इसी प्रकार का एक लेक्चर जो है, उसमें मैंने कल ही एक घटना का वर्णन किया था। वो घटना थी बीना स्टेशन पे। एक एमपी महोदय, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो अनमार्क्ड गाड़ी में टू व्हीलर में बैठ करके और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के सीन पे पहुंच गए, और उन्होंने एक जीआरपी के स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग करी, या ये बताया गया कि उन्होंने मैन हैंडलिंग करी थी। उसके बाद से स्थिति बिगड़ गई और लाठीचार्ज हो गया, और एमपी महोदय को बहुत चोट लगी, स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। अगर उस समय हम लोग जीआरपी और आरपीएफ मिल करके ठंडे दिमाग से काम करते तो हो सकता था कि इस लाठीचार्ज से बचा जा सकता था और स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता था। लेकिन चूंकि हमने सिंक में काम नहीं किया, हमने साइलोज में काम किया, हमने नी जर्क रिएक्शन किया, हमने प्रोवोकेशन में एक्ट किया, इसीलिए स्थिति बिगड़ गई। तो जो कहा जाता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। हिस्ट्री अपने आप को क्यों रिपीट करती है? हिस्ट्री अपने आप को इसलिए रिपीट करती है कि हिस्ट्री से, इतिहास से जो पिछली गलतियां होती हैं, इतिहास में जो गलतियां होती हैं, उससे हम सबक नहीं सीखते और फिर वही गलतियां दोहराती हैं। चूँकि वही गलतियां हम दोहराते हैं, इसलिए हिस्ट्री फिर से रिपीट करती है। हिस्ट्री में जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सीख लेनी है और भविष्य में उन गलतियों को नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर इन गलतियों से सीख लेंगे, भविष्य में गलतियां नहीं करेंगे, तो हिस्ट्री में जो, पास्ट में जो, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, भविष्य में नहीं होंगी। तो भविष्य में अगर गलतियां नहीं होंगी तो भविष्य जो है हिस्ट्री का रेप्लिका नहीं होगा, भविष्य जो है हिस्ट्री से अलग होगा। इसीलिए हमेशा पास्ट में की गई, हिस्ट्री में की गई, इतिहास में की गई गलतियों से सबक सीखना है, उनको दोहराना नहीं। उसी तरह से रिलीजियस गैदरिंग, माघ मेला इत्यादि में हमारा बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको प्लान करके करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट ए नी जर्क रिएक्शन कि कल हम गए, तैनात हो गए और हमने वो क्राउड कंट्रोल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए इलेबोरेट, साल भर से अधिक से
प्लानिंग की जाती है, कहाँ होल्ड अप होगा, कहाँ पे लोगों को बैठने की जगह होगी, कितनी ट्रेनें चलेंगी, कौन कौन सा पीक का दिन होता है, उस पीक के दिन में भी कौन से समय में भीड़ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे ताकि घाट में अगर भीड़ है तो घाट से अगर भीड़ चलने वाली हो तो हमको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम पहले से ट्रेन लगा के रखें ताकि घाट से भीड़ आए तो उसको सीधे में ट्रेन में बिठा करके हमने ट्रेन चला दी, इवैक्यूएट कर दिया। या घाट से भीड़ अगर बहुत ज़्यादा आ रही है और उतनी ट्रेनों का हम बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं तो उस भीड़ में से कुछ भीड़ को हमने होल्ड अप में घुमाना शुरू कर दिया ताकि जब तक वो होल्ड अप में भीड़ रहे ताकि उस समय दूसरी भीड़ को हम ट्रेन में बिठा के निकाल दें। कभी भी नी जर्क रिएक्शन इन स्थितियों में नहीं करना है। अगर उस समय आपने प्लेटफॉर्म चेंज इत्यादि अनाउंस कर दिया तो स्टैम्पीड हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, कन्फ्यूजन फैल जाता है और इससे लोगों का घायल होना या उनकी मौत होना इसकी भी प्रोबेबिलिटी रहती है। कोई भी नी जर्क रिएक्शन इन स्थितियों में नहीं करना है। सारी चीज़ें प्लानिंग के आधार पर होगी, कम्युनिकेशन के आधार पे होगी। एक साइलो में आप काम नहीं कर सकते, आपको दूसरे एजेंसीज के साथ लगातार इंटरैक्ट करते रहना पड़ेगा। लोकल पुलिस जो घाट में है वो उससे इंटरैक्ट करना पड़ेगा कि भाई कितनी भीड़ वो वहाँ घाट में सह सकते हैं। अगर हमने ट्रेन से उतार करके और एक साथ 1 लाख आदमी घाट में भेज दिए और घाट में 20,000 की कैपेसिटी है तो लोग जो है वहाँ पे स्टैम्पीड कर देंगे। तो इसीलिए उन स्थितियों में हम ट्रेन्स को उस स्टेशन पे न रोक करके किन्हीं अन्य स्टेशनों पे रोकते हैं ताकि वहाँ भीड़ उतर के जब तक इस स्टेशन पे आएगी और घाट तक जाएगी, घाट पे क्राउड का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी एजेंसीज को एक साथ कम्युनिकेट करके और एक साथ मिल करके लगातार कोऑर्डिनेशन करके और काम करने की ज़रूरत होती है। इन स्थितियों में अगर इस स्थितियों में एक एजेंसी ने दूसरे से बात नहीं की, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं किया, साथ मिल के काम नहीं किया तो किसी भी हालत में इस प्रकार के बंदोबस्त में गड़बड़ी होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसी तरह से बंद इत्यादि में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हमने बनाया है स्लाइड में। उसको मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा और हमेशा दिमाग में रखिएगा कि क्या डूज है और क्या डोंट्स है ताकि इस प्रकार की स्थितियों में उनको फॉलो किया जा सके। ACP जो है अलार्म चेन पुलिंग, वो रेलगाड़ी जो है, जो पैसेंजर ट्रेन है, उसके रूट को नष्ट कर देती है। जो एक रूट प्लान होता है उसको ख़त्म कर देती है और फिर जो फ्यूचर रूट प्लान होगा उससे उस ट्रेन का लेट होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए अलार्म चेन पुलिंग जो है वो ट्रेन के ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के साथ इंटरफेयर करता है। उसके खिलाफ एक्शन लेना रेलवे ज़रूर चाहती है कि RPF उनके खिलाफ एक्शन ले। कभी कभी वो पैसेंजर का कमर्शियल रीजन से होता है, जैसे कोच में पानी नहीं है, टॉयलेट गंदा है, अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फैन इत्यादि नहीं चल रहा है, उसमें भी अगर इस तरह की स्थितियां हैं और कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है अलार्म चेन पुलिंग करने का, उसके बावजूद भी रेलवे सुरक्षा बल को इंटरवीन करना चाहिए और प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि अलार्म चेन पुलिंग की इंसिडेंट्स जो है एनालिसिस करके और उस पर ऊपर कार्रवाई हो और उसको कम किया जा सके। इसी तरह से एक्सेस कंट्रोल, सर्कुलेटिंग एरिया का ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्टेशन के अंदर का जो पेडेस्ट्रियन फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उसमें भी हमको काम करने की ज़रूरत है। टिकट चेकिंग में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैं बता ही रहा था, सर्कुलेटिंग एरिया में बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक मैनेजमेंट ताकि जो स्मूथ हो ट्रैफिक फ्लो सर्कुलेटिंग एरिया में और पैसेंजर्स सीमलेसली बिना किसी रोक के स्टेशन पे पहुंच जाए। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्कुलेटिंग एरिया में अच्छा न होगा तो हो सकता है कि पैसेंजर समय पे स्टेशन पे आए फिर भी उसकी ट्रेन छूट जाए क्योंकि वो ट्रैफिक जैम में फंस गया है। तो ट्रैफिक फ्लो ऐसा हो कि जो पार्किंग में जाने वाला हो स्मूथली पार्किंग स्पेस में पहुंच जाए। जो ड्रॉप एंड गो वाले हों वो पैसेंजर को ड्रॉप करके और 2 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से बाहर आ जाए, कहीं भी कोई रुकावट का सामना न करना पड़े। उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है और एनफोर्समेंट की ज़रूरत है जो कि रेलवे सुरक्षा बल कर सकता है। उसके लिए आपको
सिविल पुलिस के या डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, सिटी पुलिस के, ट्रैफिक कॉप्स के साथ, ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है। और पीक आवर्स और स्पेशल इवेंट्स आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पीक आवर्स है, इसमें व्हीकुलर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा तैनाती की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस की, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, और उस जगह पे हम ज़्यादा फोकस अटेंशन करते हैं, ज़्यादा प्लान करते हैं, ताकि उस समय हम उस ट्रैफिक को मैनेज कर सकें। उसी तरह से टिकट चेकिंग या कमर्शियल ड्राइव्स जो है बहुत ज़रूरी होता है। उसमें रेलवे चाहती है कि हम उसका हिस्सा बने, रेलवे को सफिशिएंट मदद पहुंचाएं ताकि टिकट चेकिंग इत्यादि हो सके, और टिकट चेकिंग के खिलाफ जो टिकट अनऑथराइज जो ट्रैवल है, टिकटलेस ट्रैवल है, उसके खिलाफ डिटरेंस बढ़े। और एक और एस्पेक्ट जो है उसमें रेलवे चाहती है कि हम और इफ़ेक्टिवली योगदान करें, वो है प्रिवेंटिंग अनटूवर्ड इंसिडेंट्स। आपको पता ही होगा, लेकिन जस्ट एज ए मेजर ऑफ रिपीटिशन मैं ये आपको बता दूं कि पूरे देश में साल भर में करीब 33 to 35,000 इतने आदमी रन ओवर होते हैं, रेल से कट के मरते हैं, और करीब करीब उसके आधे घायल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जो हैं ये हमारे ऊपर एक धब्बा है, लेकिन किस प्रकार से इसको कम किया जाए ये बहुत सोचने की चीज़ होती है, क्योंकि रेलवे का सिस्टम चारों ओर से खुला है। हमारा ऐसा आर्किटेक्चर है, ऐसा हमने डिज़ाइन किया है कि इजीली हमारा सिस्टम एक्सेसिबल हो, पब्लिक को इजीली पहुंचने में मदद मिले। तो हम इजीली एक्सेसिबल सिस्टम है, इसीलिए हमारे ट्रैक, हमारे स्टेशंस में खुले हुए हैं, हमारे यार्ड्स खुले हुए हैं। तो कोई भी कहीं से भी आकर के यार्ड में या ट्रैक पे आ जाता है और उसमें रन ओवर हो जाता है। प्लस रेलवे के साथ इतनी स्पीड में ट्रेनें चलती हैं, अगर वो 100 की स्पीड पे चल रही है तो इंसान जब तक ट्रेन को देख करके पलक झपकाता है, तब तक ट्रेन इतने नज़दीक आ जाती है कि वो इंसान ट्रैक से रिस्पॉन्ड करके हटने से पहले ही ट्रेन की चपेट में आ जाता है। तो नॉर्मली ये जो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग होते हैं, नॉर्मली ट्रैक क्रॉस करते हैं, लेकिन जिस समय ट्रेन आने को होती है और कभी कभी ट्रेनें लेट भी चलती हैं, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उस समय ट्रेन आ रही हो, और ट्रेन आ जाती है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, अपने आप को बचा नहीं पाते और रन ओवर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स से कैसे रोक लगाई जाए, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जिसमें कि हमको प्लान करके, सोच करके और स्पेसिफिक मेजर्स इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ रन ओवर जो है वो रेलवे सिस्टम को पैरालाइज नहीं करता, दुनिया भर के क्लेम भी देने पड़ते हैं, और एक एक ह्यूमन लाइफ का लॉस जो है वो लॉस इमेजरेबल लॉस है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसको किसी तराजू में तौला नहीं जा सकता। वो लॉस जो है प्राइसलेस है। ह्यूमन लाइफ इज प्राइसलेस, सो लॉस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ इज इररिपेरेबल, इट कैनॉट बी रिपेयर्ड, इट कैनॉट बी कंपेंसेटेड बाय एनीथिंग। तो अगर हम अपना इस प्रकार का स्ट्रेटजी अपना के एक भी जान को बचा सकते हैं तो वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। इसी संदर्भ में मैं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे मिशन जीवन रक्षा का मेंशन जरूर करना चाहूँगा। इसमें हम लोग करीब 1500 जाने साल भर में बचाते हैं, समय पे इंटरवीन करके। जब कोई पैसेंजर या जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी जो है या चढ़ रहा होता है चलती ट्रेन में, या चलती ट्रेन से उतर रहा होता है, हैंड रेल से हाथ फिसल जाने, फुट रेस्ट से पाँव फिसल जाने इत्यादि के कारण प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गैप में घुसने लगता है, और अगर वो घुस गया तो उसकी जान चली जाती है। तो इस दौरान, इसी समय में, इन द निक ऑफ टाइम, हमारे आरपीएफ के, आरपीएसएफ के जवान जो स्टेशन और ट्रेनों में तैनात होते हैं, अपनी जान पे खेल के, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी
उस तरह के सिचुएशन में पैसेंजर्स को खींच करके गैप से बाहर निकालते हैं या गैप में घुसने से रोकते हैं। और उनकी जान बचाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अनटूवर्ड इंसिडेंट तो प्रिवेंट करते ही हैं और बहुत बेशकीमती जिसकी की कीमत नहीं लगाई जा सकती ऐसी प्रेशियस जिंदगी बचाते हैं। इसके लिए हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत होती है। क्वार्टरली मीटिंग होती है कि किस तरह से अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए। एजीएम लेते हैं और जोनल लेवल पे, डिविजनल लेवल पे एडीआरएम लेते हैं। उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं उस मीटिंग में। ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेस पासिंग प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं और उन गैप्स को प्लग करते हैं। अगर परमानेंट बाउंड्री बन सके तो परमानेंट बाउंड्री से ट्रेस पास अवॉइड हो सकता है। अगर परमानेंट बाउंड्री नहीं पॉसिबल है तो उसको ट्रेंचेस बनाते हैं, डीप ट्रेंचेस, ताकि कम से कम कैटल अंदर नहीं आ सके, ह्यूमन इंसान को भी अंदर आना हो तो वो बड़ी मुश्किल से आ पाए। अवेयरनेस ड्राइव्स इत्यादि चलाते हैं और इसी प्रकार के एक एनवेलप ऑफ सॉल्यूशंस जो है अभी मुंबई सबअर्बन सेक्शन में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि मिशन जीरो डेथ के नाम से उसको चलाया जा रहा है। इसी तरह के मिशंस को अलग अलग जगहों पे चलाने की ज़रूरत है ताकि इस संख्या में ये जो रन ओवर डेथ्स हैं या अनटूवर्ड इंसिडेंट और अदर केसेस ऑफ रन ओवर डेथ्स हैं जो कि करीब 33 से 35 हज़ार हर साल में हो रहे हैं, उसमें कमी हम ला सकें। उसके बाद हमारी रेलवे की हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी, सेरेमोनियल फंक्शंस, दूसरे ड्यूटीज़ में भी अपना योगदान करें। जो वीआईपी विजिट्स हैं उसमें बंदोबस्त, एमपी मीटिंग, पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग, तरह तरह के जो सेरेमोनियल फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, उसमें करें। और स्पेशल फंक्शंस हैं, स्पेशल ट्रेन्स का एस्कॉर्टिंग है, जैसे श्रमिक स्पेशल, कोविड के टाइम में ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनें चली, अभी हाल में आस्था स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, तो स्पेशल ट्रेनों की एस्कॉर्टिंग इत्यादि इसमें हम अपना योगदान करें। हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान योगदान करें। स्पेशल इवेंट्स जैसे होता है रन फॉर यूनिटी होता है, ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है, इसमें भी रेलवे की तरफ से हम मेजर स्टेक होल्डर होते हैं जो कि अपनी भूमिका निभाते हैं इन फंक्शंस को सफल करने के लिए। एक समस्या जो पहले भी रही है लेकिन अभी काफ़ी अधिक उसको पब्लिसिटी मिल रही है, वो है स्टोन पेल्टिंग। स्टोन पेल्टिंग जो है ये देखने में या एक नज़र में बड़ी इनोकुअस सी इंसिडेंट लगती है, लेकिन जब एक प्रोजेक्टाइल चलती ट्रेन की तरफ फेंका जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है एक गोली की तरह होता है, और जब वो एक गोली की तरह आके लगता है तो अगर किसी पैसेंजर के किसी बॉडी पार्ट पे लगता है तो हो सकता है उससे उसकी मौत या उसकी ग्रीवस इंजरी भी हो जाए। तो काफ़ी स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती हैं, या तो जुवेनाइल करते हैं, बच्चे करते हैं, जो नशे में होते हैं वो करते हैं, रेलवेज़ के प्रति जो दुर्भावना रखते हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार वो स्टोन जो स्पेशल ट्रेन्स, प्रीमियम ट्रेन्स, वंदे भारत इत्यादि, इस पे स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती हैं और बहुत ग्रीवस घटनाएं हैं और इनके खिलाफ रेलवे की तरफ से आरपीएफ लगातार कार्रवाई करती है। रेलवे एक्सपेक्ट करती है कि आरपीएफ इस मामलों में कार्रवाई करे, इनकी रोकथाम करे, इनमें रिमेडियल मेजर्स ले, और अगर स्टोन पेल्टिंग हो गई है तो जो कल्प्रिट जिसने किया है उसको आइडेंटिफाई करे और उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले। इमीडिएट रेस्पॉन्स ज़रूरी है प्रिवेंटिव मेजर्स के अलावा, कि जैसे ही इस तरह की घटना प्रकाश में आती है हो सकता है कि तुरंत अगर रेस्पॉन्ड किया जाए तो वो स्टोन पेल्टर जगह पे मिल जाएगा, या उस स्टोन पेल्टिंग को घटना कारित करते हुए किसी ने देखा हुआ वो मिल जाएगा, ताकि क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें कम्युनिटी को भी एंगेज करना होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होता है, और दूसरे एजेंसीज़ के साथ, लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके, लोकल लीडर्स के साथ, टीचर्स के, स्कूल के टीचर्स के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ मिल करके और काम करने की ज़रूरत होती है, ताकि कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया जा सके अपने प्रिवेंशन एफर्ट्स में,
और कोशिश की जाए कि सब लोगों को पता चले कि स्टोन पेल्टिंग कितना ग्रीवस और कितना डेंजरस काम है और उसको करने से कितनी सज़ा हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन करना, स्टेट पुलिस या स्टेट के दूसरे एजेंसीज़ के साथ। रेलवे साइलो में काम नहीं करती, रेलवे उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी स्टेट में काम करती है, यहाँ की दूसरी एजेंसियाँ भी काम करती है। अगर वो मिल के काम करेंगी तो रेलवे का काम भी अच्छा होगा, दूसरे एजेंसीज़ का भी काम अच्छा होगा। अगर साइलोज में काम करेंगे तो जो काम करना चाहेंगे वो काम जो है ढंग से नहीं होगा और बार बार उसमें डिसरप्शंस होंगे। इसीलिए हम लोग जॉइंट काम करते हैं, जॉइंट एफर्ट लेते हैं, मिल करके काम करते हैं और जहां ज़रूरत पड़ती है नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जैसे वॉलंटरी एजेंसीज है, एनजीओज है, उनके साथ भी मिल के काम करते हैं। अभी हाल में हमने बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पीस लॉरिएट है उनकी संस्था है, उसके साथ मिलके हमने एक MOU किया और उस MOU के अंतर्गत काम कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम पूरे फील्ड से आ रहे हैं। और हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड रेस्क्यू के फील्ड में NGOs के साथ कोलैबोरेट करके बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और लगातार हासिल कर रहे हैं। इस तरह के जो अच्छे केसेस होते हैं उनकी केस स्टडी को हाईलाइट भी करना चाहिए। पब्लिक को भी, अपने फोर्स के मेंबर्स को भी, इंडियन रेलवे के ऑफिसर और पर्सनल को भी सबको बताते रहना चाहिए ताकि सब में एनकरेजमेंट हो। एनकरेजमेंट इन्फेक्शस होता है, अगर उसको फैलाया जाए तो बहुत ज़ोर से फैलता है और उसका इम्पैक्ट लोगों के रिस्पॉन्स में, लोगों के कार्यकलाप में, उनकी इफिशिएंसी में बहुत अच्छा होता है। इसीलिए केस स्टडीज़ को, अच्छे केस स्टडीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। एक ये इलाका है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। हम कस्टमर के लिए काम करते हैं। भारतीय रेलवे अपने कस्टमर्स के लिए काम करती है। देश के नागरिक भारतीय रेलवे के कस्टमर हैं जो कि 2.3 करोड़ लोग जो हैं रेल में यात्रा करते हैं प्रतिदिन और अपना माल रेल में देते हैं। वो रेलवे ढोती है उनके बिहाफ में और उनको गंतव्य तक पहुंचाती है। अगर हम कोयला जो है कोल माइन से निकाल करके और पावर प्लांट तक न पहुंचाएं तो 65 से 70% जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद हो जाएं और 2 से 3 दिन में देश में पूरा पावर का आउटेज हो जाए। तो हम लोग का काम इतना इम्पोर्टेंट है और ये कस्टमर्स जो हैं जो लगातार हमारे अपना बिजनेस हमको देते हैं, हमको बिजनेस देते हैं, हमको रेवेन्यू देते हैं, हमको एक पर्पस देते हैं काम करने का, उनको सेटिस्फाई करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि जो कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, वो डिवाइन पर्सोनिफाइड है, एक देवता की तरह है। ऐसा देवता जो हमारे डोर स्टेप पे आता है, तो हमारे जब वो डोर स्टेप पे आता है तो उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना वो एक पूजा की तरह है। और अगर हम उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाते हैं तो पूजा करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य हमें मिलेगा। हमारे पर्पस, हमारा जो एग्जिस्टेंस का है वो है उसको सेटिस्फाई करना, उसकी मांगें पूरी करना, उसको पूरी तरह से संतुष्ट करना अपने सर्विसेज से। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक ऐसा फील्ड है जिसमें रेलवे हमेशा चाहती है कि RPF लगातार अपना योगदान देते रहे, चाहे वो इमरजेंसी रिस्पांस में है 139 हेल्पलाइन से जो सिक्योरिटी रिलेटेड या अन्य समस्याएं पैसेंजर बताते हैं उनका डिस्पोजर, उनका रिसोल्यूशन करना, चाहे वो थेफ्ट ऑफ पैसेंजर लगेज हो या मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग हो, असॉल्ट हो, इस तरह के पैसेंजर के ग्रीवांसेस चाहे सिक्योरिटी रिलेटेड हो तो भी ठीक, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं हो तो भी ठीक। जैसे कोई बीमार पड़ गया ट्रेन में यात्रा कर रहा है, सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है, फिर भी इमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत है, अगर वो ग्रीवांस भी हमें मिले तो हमको उसमें भी कार्रवाई करनी है। कभी कभी महिलाएं जो कि एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में रहती हैं उसके बावजूद उनको यात्रा करनी पड़ती है, यात्रा के दौरान उनको लेबर पेन हो जाता है। उस स्थिति में भी हमारी जो महिला RPF की कर्मियां हैं वो लोग उनको चारों तरफ से घेर करके ये कराती हैं, उनका डिलीवरी कराती हैं, उनके ऑनर को प्रोटेक्ट करते हुए और उसके बाद उनको सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं।
इस ऑपरेशन को हमने मातृशक्ति ऑपरेशन नाम दिया हुआ है और लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमारी जो महिला जवान हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस ऑपरेशन में वो अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है, प्रेज़वर्दी है। तो इस तरह के मामले होते रहते हैं, या ओवर क्राउडिंग हो या पैसेंजर बिलोंगिंग का थेफ्ट हो। ऑपरेशन अमानत एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन चलता है जिसमें कि अगर लेफ्ट ओवर हो जाता है कोई यात्री का लगेज और वो बाद में 139 में फ़ोन करके बताता है कि हमारा लगेज लेफ्ट ओवर हो गया, उसको हम लोग ट्रेन में ढूंढ करके निकाल करके उसके सुपुर्द करते हैं। इस तरह से हम यात्रियों के करोड़ों के सामान उनको उनके ताबे में वापस लौटाते हैं और यात्री अपना खोया हुआ सामान पा करके बहुत खुश होते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, रेलवे के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। इस तरह से हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेबल रेट्स हैं, चाहे पैसेंजर फ्रेट, कहीं कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ट्रेन में, ट्रेनें रुक गई हैं, तो जो स्टेबल रेट हैं रास्ते में रुकी हुई हैं, वहाँ पे यात्री हैं भूखे प्यासे हैं, उनको भोजन पहुँचाना, उनको पानी पहुँचाना, हो सकता है हमारा काम नहीं हो लेकिन उस समय हमारा काम हो जाता है और वो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इस प्रकार की ट्रेनें होती हैं जो कि बहुत समय से डिले हो जाती हैं, यात्री भूखे प्यासे होते हैं, रेलवे स्टेशन में उतरते हैं कोई तो वहाँ लूटपाट करने लगते हैं, फूड स्टॉल लूटने लगते हैं, यात्रियों में गुस्सा होता है। उस समय भी उस स्थिति को कंट्रोल में लाने में हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर ये बुक्ड कंसाइनमेंट जो होता है, यात्री अपने सामान को हमारे ताबे में देते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचा दें। उसमें भी हमारी भूमिका होती है कि उसको सिक्योरली हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाते हैं और फिर जब पार्सल डिपार्टमेंट उनके हवाले करता है वो सही सलामत पाते हैं तो सेटिस्फाइड होते हैं। और अगर उसमें कुछ टैम्परिंग होती है या उनका सामान गायब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो इस तरह की स्थितियों से बचाने में भी हमारी भूमिका रहती है। जो लीज होल्डर हमारे भाई हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, वो इस SLR के बिजनेस को अपना प्राइवेट के बिजनेस के रूप में लेते हैं और हमें रेवेन्यू देते हैं, तो वो भी हमारे कस्टमर हैं। तो उनकी भी जो लीज होल्डर जो सामान ट्रांसपोर्ट कराते हैं उनकी सुरक्षा में भी हमारी भूमिका है। पेंट्री कार ऑपरेटर्स जो हमारे बिहाफ में काम करते हैं और पैसेंजर्स की सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा और उनके जो अनऑथराइज वेंडर्स के साथ झगड़े इत्यादि को सुलझाना या इंटरवीन करना वो भी हमारा काम होता है। अनऑथराइज हॉकर्स जो कि बिना अनवेरीफाइड क्वालिटी के सामान बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हमारा काम है। स्टोन पेल्टिंग जो है वंदे भारत इत्यादि में अगर होती है और उससे हमारा पैसेंजर घायल हो जाता है तो वो हाईली डिससेटिस्फाइड होता है। उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ये इंश्योर करना होता है कि वो टाइम से और सेफली अपने गंतव्य तक पहुँचे। अगर स्टोन पेल्टिंग में वो घायल होगा तो वो सेफली अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचेगा, घायल होकर पहुँचेगा और वो रेलवे के सिस्टम से दुखी होगा, नाराज़ होगा। इसलिए ऐसी स्थितियों से बचाने में भी हमारी भूमिका है और कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन चलाने में भी हमारी लगातार भूमिका होती है। इस बारे में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जब हमको वो 2006 में कलर दे रहे थे तो उन्होंने जो बातें हमको बताई थी उनका मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। उन्होंने कहा था कि द इंडियन रेलवेज नेम फॉर द सर्विस विल फर्दर बी एनहांस्ड by incorporating the following additional mission in the railways। उन्होंने 4 मिशन हमको दिए थे, 4 मिशन दिए थे। उसमें पहला मिशन था a child below the age of 7 or a senior citizen is able to travel from Kanyakumari to Dispur, Assam safely like a child or a senior citizen is able to travel from Atlanta to Madurai by air without an escort। A young lady is able to travel safely without a companion from Mumbai to Patna and reach home safely। All the passengers traveling in the trains feel confident that their belongings are safe and do not have to spend sleepless nights worrying about the loss of their luggage। The international tourists are able to feel that train travel in India is passenger friendly, safe and secure। तो ये 4 जो है राष्ट्र की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन, रेल की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन रेलवे सुरक्षा बल से किया हुआ है पैसेंजर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, वो हमारे लिए गाइडिंग पोस्ट की तरह है।
पत्थर में खींची हुई लकीर की तरह है, जिसको हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा एक और जो एस्पेक्ट है जहां रेलवे को हमसे उम्मीदें होती हैं, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर जो है वो कह के नहीं आता, अगर वो कह के आता तो डिजास्टर नहीं होता, अप्रत्याशित होता है और उसका जो मोमेंटम होता है वो ह्यूज होता है और न सिर्फ रेलवे को, इसके कस्टमर्स को, इसके सारे स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट करता है। जान और माल की क्षति होती है और रिकवरी और रेस्टोरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, उसको रोकने में, दैट इज प्रिवेंशन, उसके इम्पैक्ट को कम करने में अर्थात मिटिगेशन, और अगर हो गया हो तो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने में, लोगों को जान माल की कम क्षति हो, उनको समय पे निकाला जा सके, मेडिकल अटेंशन दिया जा सके, और फाइनली रेस्टोरेशन में, ताकि जल्दी से जल्दी सिस्टम जो है ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन को के लाइन में रेस्टोर हो जाए। प्रिवेंशन जो है उसके लिए ड्राइव्स हम चलाते हैं, वो ड्राइव्स है अगेंस्ट कैरेज ऑफ इन्फ्लेमेबल मटेरियल, सेफ्टी ड्राइव्स दूसरे डिपार्टमेंट के साथ चलाते हैं, एलसी गेट में, चाहे वो मैंड हो या अनमैंड हो, ट्रेसपास के खिलाफ ड्राइव चलाते हैं ताकि रनओवर के डेथ्स कम हो। लॉकिंग, स्टेबल कोचेज को लॉक करते हैं, अगर स्टेबल कोचेज लॉक नहीं हो तो वहाँ क्रिमिनल इंटरफेरेंस हो सकता है, वहाँ कोई बम रख सकता है, वहाँ कोई सिगरेट या बीड़ी जला हुआ छोड़ सकता है, वहाँ पे कोई इस प्रकार की घटना कर सकता है जिसका कि रेलवे के सिस्टम में बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह के जो अनलॉक्ड स्टेबल कोचेज हैं वहाँ रेप इत्यादि की भी घटनाएं पास्ट में हुई हैं। स्मोकिंग के खिलाफ ड्राइव चलाते हैं, फुटबोर्ड रूफ ट्रैवल के खिलाफ ड्राइव चलाते हैं, और उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उन एक्सीडेंट्स में भी रेलवे की, आरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम क्या करते हैं, हम वहाँ जाके लीडरशिप एस्टैब्लिश करते हैं और घटना को मतलब वहाँ पे कार्रवाई को लीड करना शुरू करते हैं, और वहाँ पे एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना लेते हैं। एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश कर लेते हैं जहाँ से कमांड एंड कंट्रोल चलता है, जहाँ से डिप्लॉयमेंट हो सकता है। एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको बैरिकेड करना शुरू कर देते हैं। जो अंदर में फंसे हुए लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, उनके रेस्क्यू और उनको मेडिकल अटेंशन जो है इंजर्ड को, उनको देने के लिए टीमें बनाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जो पैसेंजर के लगेज वहाँ पर रखे हुए हैं, कोई उनको लूटपाट न कर ले, कोई उनको लेके न चला जाए, उसके लिए उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं, लेबलिंग करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। क्राउड कंट्रोल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सिस्टम रेस्टोरेशन में काम शुरू हो जाए। और अगर फायर फाइटिंग है या रेस्क्यू करना होता है तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो गोल्डन आवर है उसके दौरान रेस्क्यू इत्यादि पूर्ण हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके और मिटिगेट हो जाए, जो डिज़ास्टर का इम्पैक्ट है कम हो, और जो डिज़ास्टर से अफेक्टेड हो गए हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, समय से गंतव्य तक पहुँचा दिया जाए। अगर वो इंजर्ड नहीं है तो, अगर इंजर्ड हैं तो उनको फर्स्ट अटेंशन, फर्स्ट एड इत्यादि देके हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, और जो लोग इंजर्ड नहीं हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी प्लेस ऑफ ऑकरेंस से नई स्पेशल ट्रेन से या बाई रोड से हटा करके उनको गंतव्य तक भेज दिया जाए और जल्दी से जल्दी सिस्टम को रेस्टोर किया जाए। पहले से ही हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स का गठन करना होता है, उनको इक्विपमेंट्स देना होता है, उनकी ट्रेनिंग करानी होती है, उनको मॉक ड्रिल्स कराना होता है, और उनके इक्विपमेंट्स की रिलायबिलिटी हर हफ्ते या एक पीरियड के अंदर लगातार चेक करनी होती है ताकि समय पे उनको ये सामान उपलब्ध हुए। पता चला कि वो हमेशा से कर तो रहे थे, लेकिन जिस समय डिजास्टर हुआ उस समय सामान कहीं और रखा और टीम पहुंच गई, उनका सामान नहीं पहुंचा। बिना सामान के वो असहाय हो जाते हैं, उनकी इफ़िशियंसी घट जाती है। इसीलिए हमेशा सामान ऐसी जगह पे रहे, इजीली एक्सेसिबल जगह पे रहे, जहां से उसको तुरंत उठा करके घटनास्थल तक ले जाया जा सके, और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जब तक वो पहुँचे उससे पहले ये सारे सामान उपलब्ध हो जाए। उनकी हमेशा से कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग इत्यादि कराएं
ताकि समय रहते हर को पता चले कि उनका रोल क्या है। अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ इसमें क्लोजली काम करती है आरपीएफ, चाहे वो कमर्शियल डिपार्टमेंट हो जिसमें कि टीटी और टीसी रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, लाइसेंस पोर्टर्स के साथ करते हैं, ताकि जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाया जा सके, जो उनके सामान हैं उनकी निगरानी की जा सके, उनको सेग्रीगेट किया जा सके। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स के इसके साथ मिलकर ट्रेनें इत्यादि चलाते हैं ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स चले जाएँ और ट्रेन ऑपरेशन में कम से कम व्यवधान पड़े। अगर डाइवर्शन करना हो प्लेस ऑफ ऑकरेंस से तो डाइवर्ट करके ट्रेनें चलानी शुरू कर दें। उसके लिए हम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, जीआरपी के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि वहाँ जो क्लूज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में बाद में एविडेंस बनेंगे, उनकी सुरक्षा हो, उनके साथ टैंपरिंग नहीं। सिक्योरिटी का जो इंसिडेंट है, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। और अगर कोई थ्रेट हो सकता है कि ये एक्सीडेंट कारित करने के बाद हो सकता है कोई और एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए भी निगरानी करने की ज़रूरत है और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इत्यादि करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के भविष्य में होने वाले डिजास्टर्स को मिटिगेट किया जा सके। लोकल अथॉरिटी जो है उसके साथ इन्वॉल्व करके और कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करके, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके हमें काम करने की ज़रूरत होती है एक्सीडेंट साइट पे। और जो रेलवे से एक्सपेक्टेशन, रेलवे की एक्सपेक्टेशन होती है आरपीएफ से, वो होती है कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करें, क्विक मोबिलाइज करें आरपीएफ टीम को डिजास्टर साइट पे और इमरजेंसी प्रोटोकॉल का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। फर्स्ट एड और मेडिकल असिस्टेंस जो है जल्द से जल्द देना शुरू कर दें और उसके लिए मेडिकल सर्विसेज के साथ, एनडीआरएफ के साथ, दूसरी एजेंसीज, पब्लिक जो है जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रही है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी होता है। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स लागू कर देना ताकि सेफ इवैक्यूएशन हो जाए, पैसेंजर डेंजर जोन से बाहर निकल जाए। और इवैक्यूएशन रूट्स जो हैं उसको क्लियर और एक्सेसिबल रखना है ताकि जल्दी से जल्दी उन रूट्स को यूज़ करके हम स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को निकाल सकें। और सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट करना है ताकि फर्दर एक्सीडेंट्स उस जगह पे नहीं हो जाए और सेफ्टी चेक्स, रिस्क असेसमेंट्स करते रहना है। ये रेलवे हमसे एक्सपेक्ट करती है। इफ़िशियंसी और स्पीड एक्सपेक्ट करती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करती है, रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं उनको बेस्ट यूज़ किया जा सके ताकि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा काम कर सकें हम एक्सीडेंट साइट पे, और इंसिडेंट को कितने अच्छी तरह से मैनेज कर सकें वो भी हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है। तो इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन हम करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हम सबके साथ मर्ज करते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे के दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, या अलग अलग टीयर्स हो, डिविजनल टीयर्स हो, जोनल टीयर हो, रेलवे बोर्ड का टीयर हो, उनके साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। या उसके बाद प्रिवेंशन मैकेनिज्म में जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं एनडीआरएफ के साथ, ड्रिल्स करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं। तो उससे हमारा हर किसी को क्या करना होता है इस तरह की स्थिति में वो उनको पता चलता है। और पोस्ट इंसिडेंट ब्रीफिंग जो है वो भी हम करते हैं ताकि क्या कमियां रह गई वो नज़र में आए और भविष्य में उस पर कार्रवाई हो, भविष्य में जब भी इस तरह का काम हो ये कमियां न रहें। तो उसके लिए एसओपी डेवलप करना पड़ता है, ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करके वो करने पड़ते हैं, आरपीएफ को ट्रेन करना पड़ता है, मॉक ड्रिल्स कराने पड़ती हैं, और इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज जो हैं जिनको ज़रूरत है वो इक्विपमेंट्स जो हैं सही क्वालिटी के मुहैया कराने पड़ते हैं। इसके बाद एक और फील्ड है जिसमें कि रेलवे हमसे चाहती है कि हम फाइनेंशियल प्रूडेंस से काम करें, अपने मैन पावर को रैशनलाइज करें और एनहांस करें एफिशिएंसी को। कैसे? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से, अपने मैन पावर को इफेक्टिवली यूज़ करके और प्राइवेट सिक्योरिटी, होमगार्ड इत्यादि को कोऑप्ट करके, और अनटूवर्ड इंसिडेंट में जांच को ढंग से करके और एक्सपेडाइट करके कैसे वो हम बताएंगे। रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि मैन पावर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्कार्स रिसोर्स है, और हर सिक्योरिटी एजेंसी का मैन पावर बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। उसको किस तरह से अच्छे ढंग से, सबसे अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जाए सबसे ज़रूरी है। इसीलिए मैन पावर को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट करना ज़रूरी है, हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे पीक आवर्स में करना है, स्पेशल इवेंट्स में करना है, ऐसी जगह पे नहीं करना है जहाँ न करने से भी काम चले।
या कम इम्पोर्टेंट एरिया से निकाल करके आरपीएफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया में डालना है, और कम इम्पोर्टेंट एरिया में अगर प्राइवेट सिक्योरिटी लगाने से काम चलता है या होम गार्ड लगाने से काम चलता है, तो होम गार्ड और प्राइवेट सिक्योरिटी को लगा के एक हाइब्रिड सिस्टम डेवलप करना है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जगह आदमी हम नहीं लगा सकते, इतना हमारे पास मैन पावर नहीं है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये फोर्स मल्टीप्लायर्स है। मैं एक सपना देखता हूँ, लगातार देख रहा हूँ, और ये सपना जल्द ही हकीकत बनेगा ऐसा मुझे विश्वास है। अगर हमारे क्रिमिनल डेटाबेस जो हैं, पूरे भारत के क्रिमिनल डेटाबेस को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उसको डिजिटल कर दिया जाए, और हर जवान जो कि प्लेटफॉर्म पे है, स्टेशन पे है, उसके पास इस तरह के साधन हों जो कि जिससे वो किसी व्यक्ति का फ़ोटो खींच करके उसको डिजिटल डेटाबेस से मिला सकता है या मैच कर सकता है, तो हमारे हर जवान के पास सस्पेक्ट को 100% आइडेंटिफाई करने का कैपेबिलिटी आ जाएगा। और उस कैपेबिलिटी के बाद फिर रेलवे सिस्टम में या जो भी ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, उस सिस्टम में क्रिमिनल्स को घुसना मुश्किल हो जाएगा, और हमारा सर्वेलेंस और हमारा डिटेक्शन स्काई रॉकेट करेगा, फुल प्रूफ हो जाएगा। हमारे रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स डिजिटल फोर्ट्रेस बन जाएंगे। ये समय अभी भले नहीं आया हो, लेकिन इस दिशा में काम हो रही है, और जल्दी ही ऐसा समय आएगा जबकि हमारा सर्वेलेंस ऐसा होगा कि कोई भी सस्पेक्ट अगर हमारे सिस्टम में घुसेगा, हमारे डिजिटल फोर्ट्रेस में घुसेगा, तो उस सस्पेक्ट को तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेगी हमारी सीसीटीवी सिस्टम या हमारे गॉगल्स जो हैं हमारे स्टाफ के पास, या गॉगल्स या मे बी हैंड हेल्ड डिवाइसेस जिससे कि फेशियल रिकॉग्निशन हो सकता है, और डेटाबेस के साथ मर्ज करके सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकता, और उस सस्पेक्ट के आइडेंटिफिकेशन और इंटरोगेशन के बाद लोग रेलवे सिस्टम में अगर सस्पेक्ट हैं तो आने से घबराएंगे। तो इस प्रकार की भी स्थिति आएगी, और उससे क्राइम पे ज़बरदस्त कंट्रोल होगा। सपना देखना हमारा काम है, अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो उनको हकीकत कैसे बनाएंगे। इसीलिए सपने देखें और उस सपनों को रियलाइज़ करने के लिए लगातार काम करते रहें, तभी सफलता मिलेगी। इसके अलावा रेलवे हमसे अपने सोशल कमिटमेंट वाले इश्यूज़ में योगदान चाहती है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो या नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन हो, जिसमें कि हम जो बेसहारा बच्चे होते हैं, घर से भागे हुए बच्चे होते हैं, जिनके साथ एडल्ट नहीं होते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कंपैशन सिक जो हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते हैं। इस प्रकार के सोशल कमिटमेंट्स में रेलवे हमारा योगदान चाहती है, और हम जो योगदान देते हैं उसको अगर हम उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं तो रेलवे उसको अप्रिशिएट भी करती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लगातार हम चाइल्ड रेस्क्यू और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के फील्ड में कार्रवाई करते आ रहे हैं, और उसमें हमें अब एक मेजर स्टेक होल्डर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, अन्य एजेंसियों के द्वारा, और उस तरह से हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करके हमको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जा रहा है। अभी हमें हाल में ही ASTU को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी धनराशि MHA से मिली है, जिससे हम लोगों ने बहुत सारी ASTU के लिए गाड़ियाँ खरीदी और अन्य संसाधन जो हैं उपलब्ध कराए। और जैसे जैसे हम इस पे काम करते जाएंगे, लोगों की निगाह में आएंगे, लोग हमारे काम को अप्रिशिएट करेंगे, लोग रेलवे को अप्रिशिएट करेंगे, और रेलवे ये मानेगी कि हम उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनके एक्सपेक्टेशन में, उनमें हम खरे उतर रहे हैं। तो हमारा गोल और विजन क्या होना चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है अपने वर्किंग में, कोलैबोरेशन जो है उसको एनहांस करना है अलग अलग एजेंसी के साथ, सेंट्रल एजेंसी हो, रेलवे एजेंसी हो, स्टेट एजेंसी हो, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हो, जो भी स्टेक होल्डर है सबको कोलैबोरेट करना है, एक प्लेटफॉर्म के साथ में लाना है, मिल के काम करना है, उनसे कंसल्टेशन करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इनकॉर्पोरेट करना है पॉलिसी मेकिंग में, और उनके साथ मिल के कार्रवाई करनी है, ताकि कार्रवाई जो हो होलसम हो, फुल प्रूफ हो, इफेक्टिव हो। पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है, उनके ग्रीवांस की रिड्रेसल करना है, उनको ये इंश्योर करना है कि वो कंफर्ट में रहें। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हमारे स्टाफ की, उनकी ट्रेनिंग करानी है ताकि वो बेटर ह्यूमन रिसोर्स बने,
वो ऐसे काम करें जिससे हम रेलवे की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम लगाएं, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हों जो कि लगातार सस्टेनेबल हो, जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड नहीं हो, इस प्रकार के प्रैक्टिसेस हम लागू करें। कम्युनिटी के साथ एंगेज करें और जो भी काम करें प्लानिंग के तहत करें। लॉन्ग टर्म जिसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म जिसको टैक्टिकल प्लानिंग करते हैं, दोनों के आधार पे काम करें। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी हो, उसके हमारा प्लान उनका भी उसका भी हिस्सा हो, और उसको जब डबटेल करके शॉर्ट टर्म प्लान करें तो वो भी जो है उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ देखें। और जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो उस समय हम रेलवे का जो मिशन है, विजन है, आरपीएफ का जो मिशन है, विजन है, उसको अलाइन करें, उसको एक सीध में लेके काम करें, ताकि हमारा जो काम हो वो रेलवे का भी ऑब्जेक्टिव मीट करे और आरपीएफ का भी ऑब्जेक्टिव मीट करे, और इस प्रकार हम रेलवे के जो एक्सपेक्टेशन हैं उसमें खरे उतरें। लगातार हमारी यही अभिलाषा होनी चाहिए, यही हमारा पर्पस होना चाहिए काम करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन से हम बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू इंडियन रेलवे। आवर एवरी एफर्ट शुड एनहांस द वर्किंग ऑफ, should enhance the efficiency of Indian Railway. It is one of our objectives of RPF also. Let us work towards this objective. Let us fulfill all the aspirations of Indian Railway. Let us rise to the expectation that Indian Railway has for us, and let us work for nation building. Thank you.